Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. आर यू गेटिंग द व्यू बेटा? हेलो. हेलो. Yes, ma'am. बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, ma'am. टुमारो इज टेस्ट. सबको पता है? Yes, ma'am. पोर्शन आर यू नोइंग? Ma'am. पोर्शन फॉर योर संडे टेस्ट, दैट इज No, ma'am. एक्सक्रीशन. What, ma'am? एक्सक्रीशन. Already I have finished that chapter. Are you recalling? Are you getting the view properly? Portion, Yes, ma'am. yeah, portion is excretion. ठीक है? That is why I have given this portion. Already you all have finished. So let us discuss some part of excretion, your portion for the test. So within 5 to 10 minutes, I will go for the revision of the portion for the test. So if I ask one question, could you tell me what is micturition? Do fast. What is micturition? Answer me. Excretion. Are you listening me? Yes, ma'am. Tell me what is micturition. Just 10 minutes I will go for the revision, so that you can do best in the exam. Removal of nitrogenous compounds from our body. Micturition, beta, I have asked what is micturition. Tell me. The process of urination is simply the micturition. याद आया? Yes, ma'am. Now the second question. Do fast. Now the second question. What are the parts in kidney? Tell me. Parts in the kidney. Parts in kidney. Answer quick. What you will write? If the question is asked, write down the parts of the kidney. What you will write? Yes? Can't you tell? Tell me. One capsule. Now listen. Again I am telling. There are two parts in kidney. First, that is Malpighian body. ठीक है? Which has two parts. That is
Bowman's capsule, याद आया? Second is glomerulus, ठीक है? Second is tubular part. Second is tubular parts. इसमें क्या आएगा? First PCT, loop of Henle, and third one DCT. Are you remembering? PCT, proximal convoluted tubule. Second one loop of Henle, loop के जैसा जो स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, याद करो. And third is distal convoluted tubule. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ सिक्रीशन होता है, यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है. Am I clear? Yes, ma'am. याद आया कुछ? मैम एक बार रिपीट कर दिए एक बार. And if the question is asked, how many organs in our body involved in excretion? What you will answer? 4. 4. Skin, lungs, liver and Lung. kidney. Is it all clear? And Yes, how ma'am. all the 4 organs are involved? What are the mechanisms of all the 4 organs? I think it must be clear to you. No need of repeating it again. Will you recall? No, मैम ma'am. कोई वेटिंग में है, ले लीजिए 9 से क्लास में. Waiting में है. I have admitted all. Just see. So, any question, any part of the excretion is doubtful. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. कोई भी प्रॉब्लम है एक्सक्रीशन में, और शुड आई गो टू द फर्दर फ्रेश चैप्टर? एनीथिंग यू वांट्स टू इंक्वायर? नो. No, ma'am. So if I will say the wrong answer, mind it. What I will do? I will straight cut the answer. Because just 2 questions I have asked orally and you are not answering well. Read properly. So in previous class I have started our environment. Now tell me how you will define environment. As I told earlier, it is just, हमने कहा था ना, anything surrounding us. तो anything क्या होगा? 2 ही aspect होता है, that is physical and biological. And biology. Very good. ठीक है? Physical and biological aspect of the universe contains the environment. कभी भी कोई aspect होगा, it will be correlated to physical as well as biological. ठीक है? So if any changes happens, then what will be the result? What will be the consequences? That will be imbalanced environment. ठीक है? So definition have you written? Physical or biological conditions occurring for the environment, and if any changes occurs, it will affect positively
as well as negatively to the environment. ठीक है, तो इसके बाद एक टर्म है that is ecosystem. Again one term is ecology, study of environment. ठीक है, तो इम्बैलेंस इकोसिस्टम, बैलेंस इकोसिस्टम इज व्हाट, अभी हमने बताया कि देयर इज ऑलवेज कोरिलेशन एंड पॉजिटिव कोरिलेशन, बैलेंस्ड कोरिलेशन should be maintained in between physical and biological condition of the life. ठीक है, this condition refers to the balanced ecosystem. Is that clear? So ecosystem is, number of ecosystems are there, types, terrestrial, aquatic. aquatic में भी दो types होते हैं, lentic, lotic. Aquatic, that is all aquatic animals living in water. तो lentic होगा when the conditions is in flowing water condition. When lotic is what, animals or the aquatic animals living in stagnant water. तो there will be lot of difference in structural as well as functional change between lentic and lotic of aquatic ecosystem. So likewise, if the environment changes, it has to affect positively or negatively to the organism. So ecosystem basically consists two items, abiotic and biotic. A पता है prefix है that shows absence. So it is having different subtype. First, physical phenomena. Second one, edaphic. Third one, geographic. ठीक है, so physical phenomena is what, air, water, temperature, rainfall, humidity, altitude. इतने सारे factors जिनके पास life नहीं है, no life existing there, is physical phenomena. Edaphic, relating to soil, relating to soil. ठीक है, relating to soil में क्या क्या factors होंगे, soil structure को consider करते हैं, texture, color, density, porosity, इतने सारे features relating to edaphic factors, जिनका अगर हम देखें तो directly affect होता है growth of the plant, because you are knowing the type of soil, sandy, clayey, loamy. हम लोग loamy को, alluvial soil को best मानते हैं, क्यों? There is proper aeration and porosity, water holding capacity is there. Sandy को अगर example में ले तो water cannot withhold, it is all percolated, it is never justified for proper growth of the plant. So agricultural point of view say that is not at all suitable. If you take the clayey soil, उसमें क्या होता है, माइक्रोपोर इज डोमिनेटिंग ओवर माइक्रोपोर. तो एक बार वाटर तुम डालोगे तो इट विल विथहोल्ड, सेकेंड टाइम मे बी विथहोल्ड, थर्ड टाइम मे बी, बट फोर्थ और फिफ्थ टाइम इफ यू विल pour the water,
तो देखोगे कि वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और इफ़ कंटिन्यूस वो 2-3 सालों के बाद इट विल टर्न इनटू मार्शी लैंड, नॉट एट ऑल जस्टिफाइड फॉर एनी टाइप ऑफ प्लांटेशन। तो व्हाट वी हैव सीन हियर कि क्वालिटी ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, features of soil matters a lot for the proper growth and development of the plant. Last one, geographic. There is always variation in the geographical condition that also affects a lot to the biotic factor, या वो plant हो और animal हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में अगर ज़ीरोफिटिक प्लांट को लेते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द डेजर्ट एरिया, और ज़ीरो कोर एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट एरिया, तो क्या होता है, दे हैव गॉट समथिंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल पैटर्न एज वेल एज फंक्शनल ऑल्सो विथ कंपैरिजन टू अदर्स हु आर लिविंग ऑन द लैंड, जो टेरेस्ट्रियल हैं उनसे थोड़ा डिफर है। तो दिस जोग्राफिकल, और कह सकते हैं वैरिंग जोग्राफिकल कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट्स द बायोटिक लाइफ। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? आंसर मी यस और नो। Yes, ma'am. ओके, तो these are the very general point for abiotic phenomena of the ecosystem. Biotic, bio means life, which has got the life, and there are only two, all types of plants and animals. ठीक है? अब देखो, ये बहुत important term है इन दोनों में। डू यू नो? दैट इज, लिख लेना, इंटर डिपेंडेंटशिप। मीन्स इन दोनों फेनोमेना के बीच में ये जो रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंटशिप, मीन्स दिस कैन नॉट सर्वाइव। ये सर्वाइव क्या करेगा, कोई लाइफ तो है नहीं, बट इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा इफ इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है? अब दूसरी साइड में देखोगे कि बायोटिक फैक्टर्स हैज नो मीन्स टू सर्वाइव व्हेन द एबायोटिक फैक्टर्स इज अवेलेबल in this universe, on this land. ठीक है? तो interdependentship means one is always needed support from others. So this is the thing happens in ecosystem. अब ecosystem माइक्रो भी होता है एंड मैक्रो भी होता है। जैसे एक स्मॉल लीफ है, मलबेरी लीफ, सुना होगा तुमने, यहाँ पे सिल्क वर्म रेयर करता है। ठीक है? तो ये पूरा लीफ लेमिना ऑफ मलबेरी, इट कैन बी टोल्ड एज द इकोसिस्टम, और ये हो गया माइक्रोवन। ठीक है? जैसे सबों ने देखा है, रखे भी होंगे एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, उसमें क्या है, वेराइटीज ऑफ फिशेस आर देयर, बट फॉर देयर सर्वाइवल यू प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट्स लिविंग इन वाटर, तो दैट इज व्हाट, they are always in touch with water, with nutrients which you are providing. अगर उसमें से पानी सक आउट कर लो तो क्या
वो सर्वाइव करेंगे? नो. एंड फॉर सर्वाइवल रेस्पिरेशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये बहुत जूनियर क्लास में पढ़े होंगे. तो इट इज़ ऑलवेज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल द टाइम्स टू कम. ठीक है. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है? रेस्पिरेशन. तो जितने भी एक्वेटिक फॉर्म्स हैं दे रेस्पायर व्हेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है. तो वहाँ डिफ्यूज़न होता है. सो वी ऑलवेज सी इन एनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर, या वो ज़ीरोपोल हो, ज़ीरोफिटिक हो, हाइड्रोफिटिक हो, एवरीवेयर they are utilizing the abiotic phenomenon. So if the biotic factor you just discard, तो इसकी अवेलेबिलिटी का कोई मीन्स रहेगा, कोई मतलब रहेगा? नो. सो जैसे कि घर में बहुत छोटी एग्जाम्पल है कि वेरियस materials are there, commodities are there, but you don't utilize it, it is all lying. तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा you will be just throwing it out because it is of no use, time has been lapsed. तो this type of relationship are you utilizing? what you utilizing? ठीक है. So this type of correlationship always happens in the universe also, in our environment also. So this is the interdependentship existing between abiotic and biotic factor. They are all happening. We are not going to observe it. We are not going to notice it. समझ में आ रहा है? Is this all items clear? Yes or no? Are you listening me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सारी चीजें समझ में आ गई. Now I am proceeding to the next item. That is फूड चेन. लिख लोगे, सबको पता होगा. फूड चेन ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर. तो इसके लिए ये ऐसे एरो बनाओगे, P, C and D. ठीक है. दिस इज प्रोड्यूसर, this is consumer, and this is decomposers. नोट डाउन कर लोगे. प्रोड्यूसर as a rule they are always autotroph. ठीक है. Producers are always autotroph. And what is the example of autotroph? Tell me quickly. What is the example of Green autotroph? plants. Green Plant. वेरी गुड. तो ये जब भी ऑटोट्रॉफ होगा क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स या ग्रासेस, जो भी फॉर्मेट हो, टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो, व्हाटएवर. और क्या है? दे आर अनकाउंटेबल. वी आर नॉट गोइंग टू काउंट इट, isn't it? Grasses, they are also included here. So they photosynthesize themselves. That is why they are told originator or producer. ठीक है. And for any food making system, any walk of life, we all know energy is consumed.
तो ये जो अनकाउंटेड है फॉर्मेट, ये इमेंस एनर्जी सोर्स दैट इज सन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसलिए ये दे कम इन स्टार्टिंग पॉइंट इन फूड चेन। कंज्यूमर विच कंज्यूम्स, और इसमें भी टाइप्स है, तो फर्स्ट, सेकंड, मे बी थर्ड। तो जो पहला होगा फर्स्ट वन, वो डायरेक्टली किसको कंज्यूम करता है? प्रोड्यूसर्स को। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन प्रोड्यूसर। तो ये क्या होगा? एज ए रूल दे आर ऑलवेज हर्बीवोर्स, दे आर ऑलवेज हर्बीवोर, ठीक है। सेकेंड लेवल ऑफ कंज्यूमर क्या होगा? और हर्बीवोर का एग्जाम्पल सबको पता होगा, रैबिट है, डियर है, गोट है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स हैं दे ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। ग्रासेस को खाते हैं, सॉफ्ट एंड लीफ को खाते हैं, तो क्या हुआ? दे आर हर्बीवोर्स, दे आर फर्स्ट कंज्यूमर ऑन दिस अर्थ। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है कंज्यूमर का, वो क्या होता है? वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं यहाँ, बट इनडायरेक्टली यहाँ होते हैं, ठीक है। तो द कंज्यूमर ऑफ सेकंड कैटेगरी which directly depends for food on first one, herbivores, ठीक है। और इनडायरेक्टली नेचुरल है कि जब इस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, इसने डिपेंड किया था इस पे, तो इनका रिलेशन दोनों से होगा, तो दे आर कार्निवोर्स। इसे भी कंज्यूम किया और ये तो है ही इनके पास, ठीक है। थर्ड वन ओमनी, इस पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है, बट इनडायरेक्टली इस पे और इस पे भी है, तो दे आर ओमनी ऑल, ठीक है। अब लास्ट में ऑल द कंज्यूमर्स हैव गॉट द restricted life, limited life. So when they will dead, that is very much sure, when they will dead, their body will be decomposed. और ये डिकम्पोजिशन कौन करवा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया, different types of bacteria involved for decomposition, ठीक है। So these all types of categories consisting one food chain. Suppose for example कैसे साइट करोगे? सपोज ग्रास है, किसने कंज्यूम किया? रैबिट। रैबिट को किसने कंज्यूम किया? टाइगर और लायन। तो क्या होगा? ये फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? यूनी डायरेक्शनल फ्लो, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो, एनर्जी का एक रूल है, इट कैन बी चेंज्ड, बट वन थिंग ऑल्सो, कि अगर कोई सोर्स है और इसमें फूड एनर्जी है, इन्वॉल्व है, और अगर ये सपोज इतने यूनिट्स में है,
जो प्लांट के पास है, इमेंस। फिर ग्रेजुअली ये क्या होगा, घटता जाएगा। इसमें जो प्रक्रिया है घटने की इस फ्लो ऑफ एनर्जी में, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन टर्म ऑफ फ्लो। याद रखोगे, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फूड टू अनदर फूड लेवल। और वो क्या कांस्टेंट रहेगा, 10% ऑफ द टोटल एनर्जी। अब पूछोगे और कहाँ गया, इसने तो सारा कंज्यूम कर लिया। नो, सपोज इतना यूनिट इसने कंज्यूम किया, दिस यूनिट्स, तो 10% अभी हमने कहा एज ए रूल ओनली 10% ही फ्लो होगा फ्रॉम वन टू अनदर, और जो 90% होगा एज हीट एनर्जी। ठीक है, दैट गो टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को भी चाहिए, बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, तो इस फूड चेन के दौरान ओनली 10% ही फ्लो हो पाता है वन फूड लेवल टू अनदर, and rest 90% it will go to the environment, atmosphere as heat energy। ठीक है, सो इसको पढ़ोगे। अब इसको कहते हैं 10% एनर्जी लॉ, लिख लेना। तो यहाँ डिक्रीज हुआ, 10,000 यूनिट था, यहाँ पे 1000 आया, यहाँ पे 100 आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर लेवल होगा तो 10 आएगा, लाइकवाइज। तो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग द यूनिट्स, बट 10% जो टोटल यूनिट है दैट विल बी ओनली फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, from one end to the other end of the trophic level। trophic कहते हैं food। is it all clear? ये 3 marks का क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कर लेना। define the 10% energy law। तो you will write in language and give this example, any example। हमने यहाँ rabbit लिखा, कुछ और लिख लो, but as a rule the first consumer should be herbivores। is it all clear? यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से? what I have written, have you noted down? Yes, ma'am. now come to the next topic। नेक्स्ट इज फूड वेब। वेब जैसे तुमने स्पाइडर का वेब घरों में देखा होगा, होता है ना, इस टाइप का वेब होता है ना। तो ये क्या करता है, ये लिंक्ड होता है एक दूसरे से। यहाँ भी व्हेन फूड, डेफिनेशन पहले सुन लो फिर लिख लेना। when food level is making the web-like structure in different direction along with the food chain is food web। have you noted down? when the food chain are linked up in such a manner making the web-like structure, it is the food web। जैसे प्रोड्यूसर P
should always at the center in food chain, और ये हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होता है, डाइवर्जेंट होता है. नेचर इज डाइवर्जेंट. यहाँ प्रोड्यूसर है, इट इज यूटिलाइज्ड. अभी जस्ट हमने लिखा रैबिट. रैबिट को लायन ने कंज्यूम किया. फिर अदर है दैट इज इंसेक्ट. इंसेक्ट को लिजार्ड ने कंज्यूम किया. फिर प्लांट चूँकि इन्यूमरेबल है, अनकाउंटेबल है, तो दैट इज डियर. इसको टाइगर ने कंज्यूम किया. ठीक है. तो फिर एक ये जो स्ट्रक्चर है इंटरकनेक्टेड, इसको क्या कहते हैं? ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाया. मतलब इन वेब लाइक स्ट्रक्चर नंबर ऑफ फूड चेन्स linearly arranged in multi directional way, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जेंट. लिख लेना. नेचर ऑफ फूड वेब इज डाइवर्जेंट. मतलब फ्रॉम वन पॉइंट इट इज डाइवर्जेंट टू ऑल डायरेक्शंस. ठीक है. ये अनकाउंटेबल है, प्लांट हो या ग्रासेस हो, या अगर एक्वेटिक प्लांट को लेते हो, एक्वेटिक सिस्टम को देखते हो, तो एल्गीज है, दे आर ग्रीन, डूइंग फोटोसिंथेसिस. दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय नंबर ऑफ, यहाँ टर्म्स चेंज कर दोगे. ठीक है. सपोज वाटर इंसेक्ट, वाटर स्कॉर्पियन बहुत कॉमन है, तुमने देखा भी होगा बरसातों में, बिकॉज रेनी सीजन आर द सीजन फॉर द इंसेक्ट. ब्रीडिंग सीजन भी कहते हैं उसको. तो वाटर स्कॉर्पियन बिग साइज में होता है, वाटर में होगा, तो दैट मे बी कंज्यूम्ड बाय वाटर स्कॉर्पियन. फिर लिजार्ड, वाटर लिजार्ड और वाटर स्नेक, लाइक दैट. तो उस एक्वेटिक कंडीशन में, उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में एल्गीज मे बी कंज्यूम्ड बाय नंबर्स. तो दैट ऑल्सो makes the web like structure, इसको कहते हैं food web. Should it be clear? Now next term is food pyramids. पिरामिड देखे होंगे, ये स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर, ऐसे होता है. एट बेस प्रोड्यूसर हुआ, फर्स्ट कंज्यूमर हुआ, सेकंड हुआ, और सपोज थर्ड नहीं है तो डिकम्पोजर्स हो. ठीक है. तो प्रोड्यूसर्स क्यों होता है एट द बेस? दे आर ऑलवेज इन द बेस. अगर तुम ऑब्जर्व करोगे फूड पिरामिड्स को, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल. ठीक है. तो दे आर कंज्यूम्ड बाय द फर्स्ट कंज्यूमर, जो एज अ रूल ऑलवेज हर्बीवोर्स होगा. दे कैन बी कंज्यूम्ड बाय द सेकेंड वन, जो कार्निवोर्स होगा. इफ ऑल द डेड, it is decomposed by the decomposers. So when food system makes this triangular format is food pyramid, in which the producers may be plant or grasses, always at the base. This shows numerous अनकाउंटेबल नंबर, इमेंस. तो एनर्जी के अगर रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ 100% एनर्जी प्रेजेंट है, जिसको इसने कंज्यूम किया, फिर इसने लाइकवाइज. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फूड पिरामिड्स. इज दैट ऑल क्लियर?
Is that all clear?